Good morning, kids. How are you? Hope you all are fine and making the best use of your time. Students, always keep a notebook and pencil with you while watching video. Welcome to today's EVS class. In the previous chapter, we learned about games we play. Let's review the important points again. Playing games keeps us fit and healthy. Games are of two types, outdoor and indoor. The games that we play outside the house are called outdoor games, and the games that we play inside the house are called indoor games. Computer games are very popular. Students, I hope you have solved the worksheet which I gave you in last video. Let's check the answers. If your any answer is incorrect, do correction work in your notebook side by side. Our first question is tick or circle the correct answer. Cricket is an indoor game, outdoor game. The correct answer is outdoor game. Second one, scuba diving is an old game, modern game. तो स्कूबा डाइविंग कौन सी गेम है? मॉडर्न गेम. करेक्ट आंसर इज मॉडर्न गेम. नाउ ट्रू फॉल्स. गेम्स आर गुड फॉर योर हेल्थ. गेम्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं एंड इट इज ट्रू. चेस इज एन इंडोर गेम. चेस एक इंडोर गेम है. इट इज ऑल्सो ट्रू. कंप्यूटर गेम्स आर गुड फॉर आवर आईज. कंप्यूटर गेम्स हमारी आईज के लिए अच्छी होती हैं. नो बेटा, इट इज नॉट करेक्ट. इट इज फॉल्स. नाउ fill in the blanks with the right word from the box. Options are rules, relax, weather. First one, we play games in order to dash. Correct answer is relax. Second, outdoor games are played when the dash is good. Yes, correct answer is weather. Third one, the dash make it easier for everyone to play. And the correct answer is rules. Well done, students. Keep it up. Students, are you helping your parents in their work? Like in dusting, watering the plants, folding clothes? Yes, good. Are you taking care of your grandparents? Yes, very good. Do you serve them food and water? आप उनकी स्टेयर्स चढ़ने में मदद करते हो? Yes, good. Kids, your grandparents need your help and support as they may not be able to do all their work themselves. And the best way to show your love and care for them is to spend time with them. So students, our today's chapter is also about caring for others. Let's learn some new words first. Students, you have to learn and write these new words in your notebook. Speak after me. First word is distribute. D-I-S-T-R-I-B-U-T-E. Distribute. Distribute means to divide something among many people. किसी चीज को बहुत सारे लोगों में बांटना. Like you distribute toffees among your friends on your birthday. Clear? Second word is cane. C-A-N-E. Cane. Cane means stick. Lathi. It is used by old and blind people to walk. Third word is invent. I-N-V-E-N-T. Invent. Invent means to create something that has never been made before. कुछ नया बनाना जो कभी पहले नहीं बना था. Like bulb, telephone, mobile. Fourth word is amaze. A-M-A-Z-E. Amaze. Amaze means surprise. हैरान होना. Let's repeat again. First word is
distribute. Second word is cane. Third word is invent. And fourth word is amaze. Students, do you know the birth dates of your family members? Yes, good. So, write the birth dates of your father, your mother, your grandmother and your grandfather in your notebook. अगर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थ डेट नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखोगे. ओके? अच्छा बताओ, हाउ डू यू फील ऑन योर बर्थडे? मस्ट बी एक्साइटेड, हैप्पी, इजंट इट? यू वियर न्यू क्लोथ्स, सब आपको विश करते हैं, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स. और शाम को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, केक काटते हो और खूब एंजॉय करते हो, है ना? सो चिल्ड्रन, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रीमा ने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. टुडे इज रीमा's बर्थडे. शी इज वेरी हैप्पी. अ पार्टी वॉज हेल्ड एट हर हाउस. आज रीमा का बर्थडे है और वो बहुत खुश है. जैसे आप अपने बर्थडे पर बहुत खुश होते हो, ऐसे ही रीमा भी अपने बर्थडे पर बहुत खुश है और उसके घर में एक पार्टी भी थी. आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर, रीमा एंड हर ग्रैंडफादर वेंट टू एन ओल्ड एज होम. पार्टी खत्म होने के बाद रीमा और उसके ग्रैंडफादर एक ओल्ड एज होम में गए. आपको पता है बेटा ओल्ड एज होम क्या होता है? आई टेल यू. An old age home is a place where old people who have no one to look after them live. Old age home वो जगह होती है जहाँ पर old people रहते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता. समझ आया बेटा? When they reached the old age home, Rima distributed sweets to the old people there. जब वो old age home में पहुंचे तो रीमा ने क्या किया? रीमा ने वहां पर सभी ओल्ड पीपल को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की. स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ. उसने सबको मिठाइयाँ बांटी. दे ऑल ब्लेस्ड एंड थैंक्ड हर. उन सब ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और उसको थैंक यू भी बोला. जैसे आप अपने फ्रेंड्स को टॉफीज बांटते हो तो सब आपको क्या बोलते हैं? थैंक यू. रीमा स्पेंट सम टाइम विद देम. रीमा ने उनके साथ कुछ समय बिताया. An old person was walking with a white cane in his hand. एक old person अपने हाथ में white stick लेकर चल रहा था. रीमा asked her grandfather about the white cane. रीमा ने अपने grandfather से उस white cane के बारे में पूछा. cane मतलब stick के बारे में पूछा. Grandfather told her that this old man was blind, hence he used a cane. उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि ये ओल्ड पर्सन ब्लाइंड थे, इसलिए वो चलने के लिए केन यानी कि स्टिक का इस्तेमाल करते थे. रीमा वेंट टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग. रीमा उनके पास गई और उनसे उनका हालचाल पूछा. द ओल्ड मैन टोल्ड रीमा दैट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. ओल्ड मैन ने रीमा को बताया कि उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था. रीमा वॉज सरप्राइज्ड. रीमा हैरान थी. शी आस्क्ड, हाउ डू यू रीड अंकल? उसने पूछा, अंकल आप कैसे पढ़ते हो? ही रिप्लाइड, ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट. उन्होंने रीमा को बताया कि ब्लाइंड पीपल ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से पढ़ते हैं. एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल. और ये ब्रेल स्क्रिप्ट की इन्वेंशन किसने की थी? लुइस ब्रेल ने. बेटा आपको पता है व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट? आई टेल यू. इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज्ड लेटर्स ऑन अ शीट. ब्लाइंड पीपल fill the raised dots on the sheet with their fingers. ब्रेल स्क्रिप्ट रेज्ड लेटर्स लिखे होते हैं शीट पर और ब्लाइंड पीपल उन रेज्ड डॉट्स को अपनी फिंगर से फील करके पढ़ते हैं.
अब मैं आपको लुइस ब्रेल के बारे में बताती हूँ। लुइस ब्रेल वॉज ब्लाइंड बट ही वॉज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ। लुइस ब्रेल ब्लाइंड थे लेकिन वो जन्म से ब्लाइंड नहीं थे। ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3। जब वो 3 साल के थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। एक बार क्या हुआ, एक बार वो अपने फादर के शॉप में उनके टूल्स के साथ खेल रहे थे तो अचानक उनकी आंख में चोट लग गई। बहुत ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उनकी आंख ठीक नहीं हुई और उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। बट ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की। Let me show you how do blind people read with the help of Braille script. Here are the alphabets A to Z written in the Braille script. Students, जैसे आप बचपन से ABCD अल्फाबेट देखते हैं तो इनकी इमेज आपके माइंड में सेट हो जाती है and you can read easily. Similarly, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी फिंगर टिप्स से इन अल्फाबेट्स को लर्न करते हैं और उनको फील करके पहचान जाते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट लिखा है एंड दे कैन रीड इजीली लाइक अस। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? क्या है ये बेटा? दिस इज अ बॉटल ऑफ सेवलॉन एंटीसेप्टिक लिक्विड। आपको पता है इस बॉटल पर सेवलॉन अब ब्रेल स्क्रिप्ट में भी लिखा आता है ताकि ब्लाइंड पीपल इसको आसानी से पढ़ सके। अगर आपके घर में सेवलॉन की इस तरह की बोतल है तो आप इसको फील कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस पर सेवलॉन ब्रेल स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट एज आई शोड यू जस्ट नाउ। Rima was amazed to learn all this. She thanked the old man and then came back home. Rima ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जानकर बहुत सरप्राइज्ड और खुश थी। उसने ओल्ड मैन को थैंक्स बोला और घर वापस आ गई अपने दादाजी के साथ। स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? Helen Keller was a very intelligent woman. She lost her sight and hearing when she was very young. Helen Keller एक बहुत इंटेलिजेंट वुमन थी। जब वो बहुत छोटी थी तब उनकी देखने की और सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी। बाय बर्थ शी वॉज नॉर्मल। जब उनका जन्म हुआ था तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो बीमार पड़ गई और उनकी देखने की और सुनने की शक्ति खत्म हो गई। बट शी वॉज वेरी बोल्ड लेडी। वो बहुत हिम्मत वाली लेडी थी और वो कुछ करना चाहती थी और उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया और वर्ल्ड की फेमस टीचर बनी। बच्चों, इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा खूब मेहनत करनी चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। Children, people whose body parts do not function properly are called differently abled people. बेटा, जिन लोगों के बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते, यानी कि किसी को सुनाई नहीं देता या किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं और उन्हें हम स्पेशल पीपल भी कहते हैं, लाइक हेलन केलर एंड लुइस ब्रेल, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे इन दिस चैप्टर। एन ओल्ड एज होम इज अ प्लेस वेयर ओल्ड पीपल who have no one to look after live. Blind people read with the help of the Braille script. And Braille script was invented by Louis Braille. Students, here is a worksheet for you. You have to solve it with the help of your parents. Question number A. Tick or circle the correct answer. First one.
People who cannot see are called dumb, deaf, blind. जो लोग देख नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? डम. डम मीन्स जो बोल नहीं सकते. डेफ. डेफ मीन्स जो सुन नहीं सकते. ब्लाइंड. ब्लाइंड मीन्स जो देख नहीं सकते. नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड सर्कल द करेक्ट आंसर. सेकेंड वन, हु लिव्स इन एन ओल्ड एज होम? ओल्ड एज होम में कौन रहता है? ओल्ड पीपल, यंग पीपल, चिल्ड्रन. बुजुर्ग लोग, यंग लोग या बच्चे. क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, वी शुड स्पेंड टाइम विद ओल्ड पीपल. हमें ओल्ड पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. इज इट ट्रू और फॉल्स? यू हैव टू थिंक ओवर इट एंड राइट डाउन अकॉर्डिंगली. Second one, blind people can read with the help of the Braille script. Blind people Braille script की help से पढ़ सकते हैं. Is it true or false? Third one, the Braille script was invented by Helen Keller. Braille script Helen Keller ने invent की थी. Is it true or false? You have to write down. Question number C. Fill in the blanks. First one, Rima distributed dash to old people. रीमा ने old people को क्या distribute किया? Second one, dash is a form of writing with raised letters on a sheet. sheet पर raised letters से लिखने के तरीके को dash कहते हैं. क्या कहते हैं ये आपने लिखना है. Third one, Louis Braille invented the dash. लुइस ब्रेल ने डैश के इन्वेंट किया. क्या इन्वेंट किया? दिस यू हैव टू राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. नाउ वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स. वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड. चिल्ड्रन, वी आर लकी as we are healthy. We can see, hear, speak and walk. But there are so many people who cannot see, speak, hear or walk. And such people are called differently abled people. These people need lots of love and special care. Beta, they do not need our sympathy. उन्हें हमारी दया की जरूरत नहीं है. But need our support and cooperation. It is our responsibility to help them in whatever way we can. जैसे अगर हम बस या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं and we see such people selling things, then we should buy things from them. We should not tease or laugh at them. Beta, caring is helping others in time of needs. We should care for one another to make this world a better place. Here is the content of this chapter. Thank you. Stay home, stay safe.